चंद्रबाबू नायडू पहुंचे अयोध्या राम मंदिर, रामलला के किए दर्शन। चंद्रबाबू नायडू ने सीएम योगी की जमकर की तारीफ। Ayodhya temple is going to play very crucial role for building spiritual values. I am very happy. I had a good darshan. I am thanking government of UP. You are seeing nowadays UP is doing extremely well. This is need of the hour. If UP and Bihar will build, then only we can achieve Vikasit Bharat 2047. I am proud. Chief Minister of UP is doing extremely well. I congratulate him. चंद्रबाबू बोले रामराज किसी भी सरकार के लिए बेंचमार्क। We are all always measure Rama Rajya is the best way of governance. That is the benchmark for any government. हनुमान को बताया सुपरमैन से ज्यादा ताकतवर, कहा अर्जुन बैटमैन से भी महान। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू आज रामनगरी अयोध्या पहुंचे, जहां पर महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्त और डीएम निखिल टिकराम फुंडे ने उनका स्वागत किया। यहां से वो राम मंदिर के लिए रवाना हुए। राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन और पूजन किया। राम मंदिर के प्रतिष्ठा द्वादशी के मौके पर आयोजित धार्मिक अनुष्ठान में सहभागी भी बने। इसके साथ ही सप्त ऋषि मंदिर में भी दर्शन पूजन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रामराज किसी भी सरकार के लिए बेंच मार्क है। साथ ही साथ उन्होंने सीएम योगी की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैं उन सभी लोगों की तारीफ करता हूं जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर को बनाने में मदद की है। ये भारत के लिए एक आध्यात्मिक हब होगा। अयोध्या मंदिर आध्यात्मिक महत्व बढ़ाने में बहुत जरूरी रोल निभाने वाला है। मुझे अच्छे दर्शन हुए। मैं यूपी सरकार को धन्यवाद देता हूं। यूपी बहुत अच्छा कर रही है। यदि यूपी और बिहार डेवलप होते हैं तभी हम विकसित भारत 2047 हासिल कर सकते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूं। अगले 2 साल में यह मंदिर दूसरे मंदिरों के लिए बेंचमार्क होगा। सुनिए क्या कुछ और कहा चंद्रबाबू नायडू ने। Today is a great day. I came here for inaugural function. That is 2024 January. Again I came here to have Sri Ram darshan and blessings. We are all always measure Rama Rajya is the best way of governance. That is the benchmark for any government. Today, so many people worked for this temple. There is a reconciliation. They have brought consensus through court and also negotiations, everything. I really appreciate all those who contributed for building this temple. Great temple, historical temple. This will be spiritual hub for India. It will bring our traditional values in a big way in the future. Today India is moving very fast. If we see technology and also knowledge, nobody can beat India now. If we add traditional values, that is the best way overall human being. So all these things is very important. Ayodhya temple is going to play very crucial role for building spiritual values. I am very happy. I had a good darshan. I am thanking government of UP. You are seeing nowadays UP is doing extremely well. This is need of the hour. If UP and Bihar will build, then only we can achieve Vikasit Bharat 2047. I am proud. Chief Minister of UP is doing extremely well. I congratulate him. Today I am seeing the temple. Now another 2 years time, this temple will be the benchmark in future for other temples. I wish all the best. And also devotees I am seeing. One day, 150,000 pilgrims are coming all over the country and also international pilgrimage. In course of time, it will increase the number and it will become best spiritual center that is going to happen.
Thank you. तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ राम मंदिर में रामलला के दर्शन करते हुए कई सारी तस्वीरें उन्होंने एक सैंडल पर साझा की। लिखा कि आज मुझे अयोध्या में दिव्य और शानदार श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन करने और पूजा अर्चना करने का सौभाग्य मिला। यहाँ एक बार फिर आकर बहुत शांति और आध्यात्मिक सुकून मिला। भगवान श्री राम के मूल और आदर्श हम सभी के लिए हमेशा के लिए सीख है। वे हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहें और हमें प्रेरित करते रहें। उसके बाद आपको बता दें कि कुछ देर में वापस महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर वो पहुंचे, जहां पर उन्होंने विजयवाड़ा एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरे। इस बीच लगभग आपको बता दें कि 3.5 घंटे जो है वो अयोध्या में ही रहे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति में भी भारतीय विज्ञान सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान जो है बड़ा बयान दिया। ये कहा कि भगवान हनुमान जी को लेकर कहा कि भगवान हनुमान की ताकत सुपरमैन से कहीं ज्यादा है। उन्होंने कई बार इस तुलना को दोहराया और कहा कि सुपरमैन, स्पाइडरमैन जैसे किरदार तो सिर्फ कल्पना के हैं, लेकिन हनुमान जी असली शक्ति, भक्ति, सेवा के प्रतीक हैं। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय महाकाव्य उनके पात्र हॉलीवुड के सुपर हीरो से कई ज्यादा ताकतवर और मूल से भरे हुए हैं। हनुमान जी इनमें सबसे आगे हैं। उन्होंने आपको बता दें कि जो है कहा कि नायडू जो कि आमतौर पर IT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इस बार अपनी बातचीत में भारतीय संस्कृति, रामायण, महाभारत पर ज्यादा फोकस कर रहे थे। उन्होंने साफ कहा कि भगवान हनुमान की ताकत सुपरमैन से कहीं ज्यादा है और कई बार इसकी तुलना को दोहराया। कहा सुपरमैन, स्पाइडरमैन जैसे किरदार सिर्फ कल्पना है, लेकिन हनुमान जी असली शक्ति, भक्ति, सेवा के प्रतीक है। हनुमान जी की शक्ति इतनी जो है असीमित है कि वह पहाड़ उठा लाते हैं, समुद्र लांघ जाते हैं, आग में भी नहीं जलते। सुपरमैन या स्पाइडरमैन जैसी फिल्में ताकत इनके सामने बहुत छोटी लगती है। हनुमान जी ने वो सब कुछ है, शारीरिक बल, मानसिक मजबूती और सबसे बड़ी बात पूर्ण समर्पण और भक्ति है। मुख्यमंत्री नायडू ने माता पिता, टीचर्स और समाज से अपील की कि बच्चों को वेस्टर्न सुपर हीरो की कहानियां सुनाने के बजाय रामायण की कहानियां बताएं, खासकर हनुमान जी वाली। उनका मानना है कि हनुमान जी की भक्ति और ताकत से बच्चे सीखेंगे और असली हीरो जो होता है, जो दूसरों के लिए जीता है। रामायण, महाभारत की कहानियां अवतार जैसी हॉलीवुड फिल्मों से भी गहरी और बेहतर है। अच्छाई बुराई का फर्क समझने के लिए हनुमान जी के साथ रावण या राक्षसों की कहानियां काफी ज्यादा है। वहीं आपको बता दें कि जनसंख्या को लेकर भी उनका बड़ा बयान सामने आया है। जनसंख्या पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा कि हर घर में कम से कम जो है 3 बच्चे होने चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। चंद्रबाबू नायडू ने जो है एक बार फिर से पॉपुलेशन को लेकर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि आप यहाँ देखें तो किसी भी बड़ी आबादी को जो है लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि अमेरिका में 8% है। यह आंकलन 25 से 50 है। इस बार देशों की जनसंख्या या तो घटेगी या फिर बढ़ेगी और ऐसे में चीन 11% कम होने जा रहा है, जर्मनी भी घट रहा है। मुझे लगता है कि हर परिवार में कम से कम 3 बच्चे जो है वो होने ही चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जो इस दौरान 148% जोड़ने जा रहा है, बहुत भाग्यशाली है। और जापान 146 पर है, यूके भी इस तरह से घट रहा है। यदि आप इन सभी देशों को देखेंगे तो पाएंगे कि आज की तारीख में जनसंख्या के मामले में उम्र बढ़ने और घटती जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन भारत जो है वो इसमें बेहतरीन काम कर रहा है। उनका कहना है कि घर में एटलीस्ट 3 बच्चे जो हैं होने ही चाहिए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, तमाम आपने बयान भी सुन लिए हैं और अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।